Hello students, I am here with a new video today. We are going to solve problem number 3 of chapter 8, that is company accounts, issue of shares. Today we are going to see few new words, that is under subscription and over subscription. Let's start with the topic. Under subscription means receiving applications of less number of shares than issued. For example, if a company issues 20,000 shares at rupees 10 per share, but it get application for 19,000 shares only, then this 1,000 shares is called as under subscription. Okay, it means the company is under subscribed by 1,000 shares. You can say like that. Okay, so this is under subscription, and over subscription is exactly opposite of this, receiving excess applications than issued by the company. For example, if a company issued 20,000 shares, but it got applications for 25,000 shares, then this 5,000 shares will be over subscription. Okay, so the company shares are oversubscribed by 5,000 rupees. So in this video we are going to discuss a question about under subscription, and in next video we will discuss a question regarding over subscription. So let's begin. So moving to a question, that is question number 3 in our textbook. Rohini Company Limited issued 25,000 equity shares of 100 each payable as follows. On application 20, on allotment 30, on first call 20, on second and final call rupees 30. Application were received for 22,000 equity shares and allotment of shares were made to them. All the money was received by the company. See, here the company has issued 25,000 shares, but they got application for only 22,000 equity shares. So there is an under subscription of 3,000 shares. Now in case of under subscription, there is no change in the accounting. Okay, जो भी फर्क आएगा, जो भी हमें एंट्रीज में चेंज आएगा, वो आएगा ड्यूरिंग ओवर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें एंट्रीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही फर्क होगा कि हम 25,000 की बजाय 22,000 शेयर्स से सारी की सारी एंट्री करेंगे. तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इशू एट पार है और अंडर सब्सक्रिप्शन है. यहाँ पर ना तो कोई प्रीमियम है ना डिस्काउंट है. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं. सो हम जल्दी से एक वर्किंग नोट बना लेते हैं ताकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहे. अभी इतने क्वेश्चंस में आप लोग सीख चुके हैं. एप्लीकेशन 20 रुपीज है 22,000 शेयर्स के लिए. एक बार फिर आपका ध्यान यहाँ पर लाऊंगी मैं. जितने नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब हुए हैं हमें वही लेना है, कितने इशू हुए हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 22,000 शेयर्स 20 रुपीज के लिए, सो 4,40,000 हमारा टोटल अमाउंट रिसीव्ड होगा ऑन एप्लीकेशन. ऑन अलॉटमेंट 30 रुपीज है फॉर 22,000 शेयर्स, सो 6,60,000 विल द अमाउंट रिसीव्ड. For first call, we are receiving 20 rupees on 22,000 shares, so 4,40,000 will be the amount received. And on second and final call, we are receiving 30 rupees on 22,000 shares, so amount received will be 6,60,000. एक टोटल लगा लेते हैं तो पूरे 100 रुपीज हम लोग जो है मंगवा चुके हैं. सो नेट अमाउंट रिसीव्ड हमारा हो रहा है 22 लाख यहाँ पर. तो अब इसके लिए जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं. सबसे पहली एंट्री होगी रिसीव्ड की. एप्लीकेशन पर हम पहली एंट्री रिसीव के करेंगे, उसके बाद ड्यू की करेंगे. फिर अलॉटमेंट पर ड्यू की, फिर रिसीव. फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, सेकेंड कॉल ड्यू रिसीव. तो इस तरीके से सिर्फ पहली एंट्री में हम पहले रिसीव अमाउंट करते हैं, बाकी बची हुई सारी एंट्रीज में हम पहले अमाउंट ड्यू करेंगे.
स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट 4,40,000 हम लोगों ने यहाँ से पिक कर लिया है। नरेशन हमारा आ गया है, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 22,000 शेयर्स एट ₹20 पर शेयर रिसीव्ड। देन ड्यू की एंट्री कर लेते हैं, सेम अमाउंट से होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, amount is 4,40,000. Narration being equity share application money on 22,000 shares transferred to share capital account. Then अलॉटमेंट के लिए हमें पहले ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी। सो 30 रुपीज से हमको एंट्री करनी है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी 6,60,000. Narration being equity shares allotment money on 22,000 shares at ₹30 per share due. Now received की एंट्री कर लेते हैं हम लोग for allotment money. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट इज 6,60,000. नरेशन हमारी हो जाएगी बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 22,000 शेयर्स एट ₹30 पर शेयर रिसीव्ड। देन फर्स्ट कॉल के लिए ड्यू की एंट्री करेंगे 4,40,000 रुपीज से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 4,40,000 इज द अमाउंट। नरेशन है बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 22,000 शेयर्स एट ₹20 पर शेयर ड्यू। तो अब हमारा फर्स्ट कॉल हो चुका। सेकेंड कॉल के लिए अब हम एंट्री करेंगे। तो पहले नहीं यार, तो अब रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं हम लोग। रिसिप्ट की एंट्री के लिए हमारे पास आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट विल बी 4,40,000 एंड नरेशन हमारी आ जाएगी बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 22,000 शेयर्स एट ₹20 पर शेयर रिसीव्ड। और आगे चलते हैं। अब हमारा एप्लीकेशन हो चुका, अलॉटमेंट हो चुका, फर्स्ट कॉल भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का की बारी आती है। तो जर्नल एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी 6,60,000. Being equity share second call money on 22,000 shares at ₹30 per share due. और ड्यू हो गया है तो फाइनली हम अमाउंट को रिसीव कर लेते हैं। Bank account debit to equity share second and final call account, amount will be 6,60,000. Being equity share second call money on 22,000 shares at ₹30 per share received. और अब हम कर लेते हैं यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर टोटल लगा लेते हैं। तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड सेम आ रही है या नहीं। टोटल हमारे यहाँ पर हो रही है 44 लाख, विच विल बी एग्जैक्टली डबल ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव, क्योंकि हमने हर चीज की 2 एंट्रीज की हैं। इसका सिंपल रीजन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई करूंगी। इसके अलावा और भी आप कुछ इसमें एडिशंस चाहते हैं तो जरूर मुझे बताएं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।